Good morning, friends. Welcome to my 52nd lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding dispersion. I have told that dispersion studies the variation of the items. It studies the scatteredness of the item from the central value. So, if more the dispersion, less representative is the average. Similarly, less the dispersion, more representative the average. So we have discussed dispersion studies the variation or scatteredness of the item from the central value. How far individual items differ from the central value is studied under dispersion. Next, we have discussed there are two types of dispersion. First one is absolute dispersion and the second one is relative dispersion. If the dispersion is found out in the same unit in which data is given, it is known as absolute dispersion. Similarly, if the absolute dispersion is divided by some average, we get a relative dispersion, and this relative dispersion is also known as coefficient of dispersion. So coefficient of dispersion is an unitless measure of dispersion. Coefficient of dispersion is found out in term of point or in term of percentage. We have discussed. Then we are discussing regarding different methods of finding out dispersion. We have studied the methods of finding out dispersion can be classified into two parts. One is known as positional dispersion, another is known as mathematical dispersion. So today we will discuss more on methods of computing dispersion. So before discussing more on methods on computing dispersion, let me first share my screen with you, then we will discuss details regarding methods of computing dispersion. 1 second please. Okay, friends, we are discussing regarding methods of computing dispersion. So first we will discuss what are the methods. We have already discussed dispersions can be of two types. What are the methods? First one is positional dispersion. Second one is mathematical dispersion. We have already discussed. The positional dispersion, in case of positional dispersion, we have discussed that it can be a range. Second, interquartile range. Third, quartile deviation. So it can be of three types: range, interquartile range, quartile deviation. Similarly, the mathematical dispersions can be mean deviation and standard deviation. So first today we will discuss regarding positional dispersion. What is positional dispersion? Positional disperson depends upon some positional value, either extreme value or quartile value or decile value or percentile value. So what is positional dispersion? Positional dispersion depends upon some positional value. By taking certain positional value, we calculate positional dispersion. So first, positional dispersion is the difference between two extreme positional values. So we will discuss one case of positional dispersion. So first write down positional dispersion. लिखिए what is positional dispersion. Point number one, positional dispersion
is a dispersion positional dispersion is a dispersion computed with the help of some positional values. What can be the positional value? The positional value can be extreme values, it can be quartiles, it can be deciles, it can be percentiles. Okay. सो पोजिशनल डिस्पर्सन क्या है? पोजिशनल डिस्पर्सन एक ऐसा डिस्पर्सन है जो कैलकुलेट होता है किसको लेकर? कुछ पोजिशनल वैल्यू को लेकर। पोजिशनल वैल्यू क्या है? आइदर इट कैन बी एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब सबसे ज्यादा वाला वैल्यू, सबसे कम वाला वैल्यू, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। क्वार्टाइल्स आपको पता है, क्वार्टाइल्स कितने होते हैं? Q1, Q2, Q3। डेसाइल्स पता है, D1, D2, D3, D4, D9। परसेंटाइल्स पता है, P1, P2, P3 और P99। कोई टू एक्सट्रीम वैल्यू को लेकर या टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स को लेकर या टू एक्सट्रीम डेसाइल्स को लेकर या टू एक्सट्रीम परसेंटाइल को लेकर हम अगर पोजिशनल वैल्यू या डिस्पर्सन निकाले, उसको हम बोलते हैं पोजिशनल डिस्पर्सन। तो पोजिशनल डिस्पर्सन कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। ओके, सो ये पोजिशनल डिस्पर्सन में हम तीन पोजिशनल डिस्पर्सन के बारे में आज पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पहले पढ़ेंगे रेंज, सेकेंड में पढ़ेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, थर्ड में पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। मैं बताया था डिस्पर्सन दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्सन, एक को बोलते हैं रिलेटिव डिस्पर्सन। रिलेटिव डिस्पर्सन को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो आज हम पढ़ेंगे रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। सिमिलरली हम पढ़ेंगे इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। थर्ड में हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन and its coefficient। ये तीनों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं किससे? रेंज से। रेंज क्या है? रेंज के ऊपर पढ़ेंगे। फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है? उसके ऊपर पढ़ेंगे। फिर क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? और उसके ऊपर पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो हेडिंग कीजिए फर्स्ट पॉइंट, रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। हेडिंग कीजिए रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। आज हम रेंज के बारे में पढ़ेंगे। पहले पॉइंट लिखेंगे रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब इट्स द गैप बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सीरीज। तो रेंज क्या है? पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर रेंज के बारे में लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन, हेडिंग कीजिए, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन range is the difference between largest item and smallest item in a series. Largest item and smallest item in a series.
एक सीरीज का सबसे बड़ा आइटम और सबसे छोटा आइटम के बीच में गैप को हम बोलते हैं क्या, रेंज। तो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट आइटम एंड स्मॉलेस्ट आइटम, सबसे बड़ा आइटम सबसे छोटा आइटम, समझ में आ गया। इन दोनों के गैप को हम बोलते हैं रेंज। ओके, नाउ सो रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम। या सिंबॉलिकली लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। फॉर्मूला याद रहेगा रेंज का। रेंज का फॉर्मूला क्या है, एल माइनस एस। सो व्हाट इज एल, एल इज इक्वल टू लार्जेस्ट आइटम। व्हाट इज एस, एस इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट आइटम। तो रेंज सबसे इजी डिस्पर्सन है, इट्स द गैप बिटवीन लार्जेस्ट आइटम and smallest item of a series. Range is equal to L minus S. What is L? Largest item. What is S? Smallest item. अच्छा, रेंज का हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज को लेकर और इसमें कुछ ऐड करके कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू L minus S divided by L plus S। तो दो फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला है L माइनस एस, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस। तो रेंज बताता है एक सीरीज में आइटम का दो छोर कौन सा है, सबसे बड़ा बड़ा छोर कौन सा है, सबसे छोटा वाला छोर कौन सा है। इसका मतलब रेंज बताता है आपका जो आइटम्स है वो किस किस के बीच में है, उसका मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है। तो आपका सारा आइटम ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होगा। Am I clear? तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आपका सारा आइटम है, वो मैक्सिमम मिनिमम के बीच में कौन कौन सा है, उनके बीच में गैप कितना है, दैट इज फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ रेंज। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रेंज टेल्स अस range tells us the interval, range tells us the interval within which all items, within which all items in a series lie। इसका मतलब अगर ये एक सीरीज है, इसका ये स्मॉलेस्ट आइटम है, ये लार्जेस्ट आइटम है, सारा आइटम इसके बीच में है। रेंज क्या करता है, ये दोनों के बीच में गैप निकालता है, एल माइनस एस करता है। एल से एस के बीच में कितना गैप है, ये गैप को बोलते हैं रेंज। ये गैप जितना बड़ा होगा एवरेज उतना लेस रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये गैप जितना छोटा होगा एवरेज उतना मोर रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो दिस इज रिगार्डिंग रेंज। रेंज is the difference between largest item and smallest item of a series। अभी हम रेंज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट रेंज इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट रेंज इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट रेंज इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो पहले कैलकुलेशन ऑफ रेंज, हेडिंग कीजिए कैलकुलेशन ऑफ रेंज। रेंज का कैलकुलेशन कैसे देखेंगे,
फर्स्ट देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, नेक्स्ट देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, नेक्स्ट देखेंगे कौन सा सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। पहले पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज। What is an individual series? Individual series is a series where only x value or only variable value are given. Next पढ़ेंगे कौन सा series? Discrete series. What is a discrete series? Discrete series is a series where x variable and their frequency f is given. Next, third one we will discuss regarding continuous series. What is a continuous series? In case of continuous series, x and f is given, but x is given in class interval form, 0 to 10, 10 to 20 इस फॉर्म में देगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अभी देखेंगे कैसे हम रेंज निकालेंगे ये तीनों सीरीज में। ये कोई भी सीरीज हो, फॉर्मूला रेंज का एक ही है, रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस डिवाइड बाई एल प्लस एस। कोई भी सीरीज हो, इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, फॉर्मूला वही सेम है। अभी देखेंगे एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे रेंज निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, कैसे रेंज निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, कैसे रेंज निकालते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। एक सेकेंड। हाँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1। अभी ये इंडिविजुअल सीरीज का है, क्यों देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज का, द प्राइस ऑफ ए शेयर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आर गिवन बिलो। एक शेयर का प्राइस मंडे टू फ्राइडे लिखा हुआ है, ये सैटरडे तक दिया हुआ है। मंडे टू सैटरडे का प्राइस दे दिया है, मंडे टू सैटरडे। एक शेयर का प्राइस दिया हुआ है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। स्टॉक मार्केट में शेयर का परचेज और सेल होता है, उसका प्राइस 6 दिन का दिया हुआ है। संडे को मार्केट बंद रहता है। समझ में आ रहा है क्या? सपोज ये शेयर है रिलायंस का, रिलायंस का शेयर का प्राइस दिया हुआ है, कितने दिन का? 6 दिन का प्राइस दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब प्राइस है। इसका क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो पहले रेंज निकालेंगे। रेंज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। व्हाट इज एस? एल इज इक्वल टू लार्जेस्ट आइटम। देखेंगे इस केस में सबसे बड़ा वाला आइटम कौन सा है? सबसे बड़ा वाला आइटम कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? 160, 158, 162, 175, 170, 175। एंड व्हाट इज एस? एस इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट आइटम। सबसे छोटा वाला आइटम कौन सा है? देखिए सबसे छोटा वाला आइटम, देखिए कहां से आता है इसमें। सबसे छोटा वाला आइटम कौन सा है? सबसे छोटा वाला आइटम है 160, 158, 162, नेक्स्ट है 175, 170, 158, ये सबसे छोटा वाला आइटम। तो क्या किए? ये एक सीरीज है, एक्स वैल्यू इज गिवन, प्राइस चेंजेस, देयरफॉर इट इज वेरिएबल, वेरिएबल्स दिया हुआ है, उसका सबसे बड़ा आइटम निकाला, सबसे छोटा आइटम निकाला। अभी रेंज निकाल सकते हैं इजीली। रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। व्हाट इज एल? एल लार्जेस्ट आइटम 175 माइनस एस 158, कितना आता है? रुपीज कितना आएगा? 175 माइनस 158,
that is equal to rupees 17. So this is range. Range is the difference, range is the gap between largest item and smallest item. अभी हम एक चीज और क्वेश्चन पूछा है, एंड इट्स कोएफिशिएंट. इसका मतलब हमको क्वेश्चन में पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालिए. इजीली निकाल सकते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, एल माइनस एस डिवाइड बाई एल प्लस एस. बेटा एल माइनस एस कितना है, एल माइनस एस अभी निकाले थे, 175 minus 158 divide by 175 plus 158 कितना आता है, 175 minus 158 that is equal to 17 divide by 175 plus 158. 175 plus 158 is equal to 333. दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा 0.051. आंसर आ गया. पहला आंसर आया था रेंज का ₹17, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का आंसर आ गया 0.051. इसको लिख सकते हैं हम. आ गया हमारा आंसर. रेंज कितना आया, रेंज इज इक्वल टू फॉर्मूला में आया ₹17. नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आया कितना, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आया आपका 0.051. बेटा एग्जांपल नंबर 1 ओवर. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये कौन सा सीरीज गया, इंडिविजुअल सीरीज. ओनली एक सीरीज गिवन. नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके ऊपर, डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक्स देगा और एफ देगा. ठीक है, तो अभी डिस्क्रीट सीरीज का बात करते हैं. इसको मिटा देता हूं. इंडिविजुअल सीरीज ओवर, इसका वैल्यू हो गया एल माइनस एस. अभी डिस्क्रीट सीरीज का पढ़ेंगे. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2. फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा calculate the value of range and its coefficient. रेंज निकालिए और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालिए. अभी मार्क्स दिया हुआ है. मार्क्स इज द वेरिएबल व्हिच चेंजेस, द थिंग व्हिच चेंज इज नोन एज वेरिएबल. तो हियर एक्स चेंजेस, मार्क्स चेंजेस, इट्स द वेरिएबल. एंड कितने लोग रखे हैं, एफ, that is frequency, number of students, that is equal to frequency. x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, लेकिन हमको रेंज निकालने के टाइम में f की जरूरत नहीं है. रेंज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, l माइनस s. व्हाट इज l, l इज इक्वल टू लार्जेस्ट आइटम. हम देखेंगे लार्जेस्ट आइटम कितना है, 10, 25, 30, 35, 45, 50, 60. लार्जेस्ट आइटम 60. फिर देखेंगे एस, एस इज इक्वल टू क्या है, स्मॉलेस्ट आइटम. छोटा, सबसे छोटा आइटम कौन सा है, स्मॉलेस्ट आइटम. स्मॉलेस्ट आइटम है 10. मेरा हो गया. रेंज इजीली निकल जाएगा. रेंज इज इक्वल टू, फॉर्मूला डालूंगा एल माइनस एस, दैट इज इक्वल टू 60 माइनस 10, that is equal to 50 मार्क्स. तो रेंज यहां पर किस में आया, मार्क्स में आया, क्योंकि ओरिजिनल डाटा मार्क्स में दिया हुआ है, तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन मार्क्स में निकलेगा. तो रेंज आ गया. फिर हमको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. तो देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालिए. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का एल माइनस एस डिवाइड बाई एल प्लस एस. तो कितना होगा, एल माइनस एस देखिए, एल माइनस एस 60 माइनस 10 डिवाइड बाई 60 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 50 बाई 70, दैट इज इक्वल टू 0. कितना आएगा, 50 बाई 70. 50 बाई 70 आ जाएगा आपका 0.71.
तो आपका आंसर आ गया। क्या आया आपका? आया आंसर में रेंज का वैल्यू कितना आया? रेंज का वैल्यू ये है 50 मार्क्स। फिर आया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कितना आया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपका आया 0.71। दीज आर द आंसर्स। बेटा समझ में आ रहा है? ये कौन सा सीरीज गया? ये गया डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमको एफ की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। एफ वैल्यू इज गिवन बट एफ का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। हम सिर्फ किसको देखेंगे? सिर्फ एक्स वैल्यू, एक्स मतलब वेरिएबल से लार्जेस्ट आइटम और स्मॉलेस्ट आइटम निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। कहां पर? कौन क्या निकालने के लिए? रेंज निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, दैट इज रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूअस सीरीज। Okay, next example number 3, compute range and its coefficient of marks obtained by 50 students। यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, लेकिन एक्स क्लास इंटरवल फॉर्म में, तो इट्स ए कॉन्टिन्यूअस सीरीज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब एफ दिया हुआ है, लेकिन मैं बताया था रेंज कैलकुलेशन के टाइम में एफ की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ एक्स को देखकर हम निकालते हैं। तो देखिए एक्स का वैल्यू 30 से शुरू हुआ है, 90 पर खत्म हुआ है। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। So what is L? L is equal to largest item। कितना है लार्जेस्ट आइटम? सबसे ज्यादा आइटम कौन सा है? सबसे बड़ा वाला आइटम 90। व्हाट इज एस? एस इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट आइटम। तो देखिए स्मॉलेस्ट आइटम क्या है? सबसे छोटा वाला आइटम। सबसे छोटा वाला आइटम कौन सा है? सबसे छोटा वाला आइटम 30 है। नाउ कैन यू कैलकुलेट रेंज? यस, रेंज कैन बी इजीली कैलकुलेट। रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। एल कितना है? 90 है। एस कितना है? 30 है। 90 माइनस 30 कितना आया? 60। 60 क्या? मार्क्स, क्योंकि ओरिजिनल डाटा मार्क्स में है, तो ये आएगा एब्सोल्यूट डिस्पर्शन मार्क्स में आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा एल माइनस एस डिवाइड बाई एल प्लस एस। एल माइनस एस, एल कितना? 90 माइनस 30 डिवाइड बाई 90 प्लस 30, that is equal to 60 by 120, that is equal to 0.50। तो हमको दो चीज मिल गया, दो फॉर्मूला का आंसर मिल गया, रेंज का वैल्यू मिल गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का वैल्यू मिल गया। रेंज का वैल्यू 60 है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का वैल्यू 0.50 है। तो लिखेंगे देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू कितना? 60 मार्क्स and coefficient of range is equal to 0.50। रेंज का वैल्यू आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का वैल्यू आ गया। एग्जांपल नंबर 3, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। ये किस तरह का कॉन्टिन्यूअस सीरीज है? ये एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। Why it is known as exclusive continuous? Because it is known as exclusive continuous। इसका मतलब 40 यहाँ पर नहीं है, 40 यहाँ पर है, 50 यहाँ पर नहीं है, 25 यहाँ पर है, 60 यहाँ पर नहीं है, 60 यहाँ पर है। हायर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अभी हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज में
कैसे रेंज निकाल लेते हैं। इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में हाईएस्ट लिमिट क्या होगा, उसी सीरीज के अंदर में होगा। एक्चुअली इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज करके कोई सीरीज नहीं है, वो डिस्क्रीट सीरीज है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो उस तरह का इंक्लूसिव सीरीज देगा तो आपको पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाकर आप रेंज निकाल सकते हैं। देखेंगे इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे रेंज निकालते हैं, एक एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर होगा। तो पहले इसको मिटाता हूं। Okay, so this is a case of inclusive continuous series. Why it is a case of inclusive continuous series? मैं समझाता हूं, क्योंकि यहां पर it is a case of inclusive continuous series. क्यों मैं बताऊंगा। inclusive continuous मैं बताया, इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इंक्लूसिव क्यों है, 10 to 19 है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में 20 से शुरू हो रहा है, तो देयर इज ए गैप। नेक्स्ट यहाँ पर 29 में खत्म हुआ, यहाँ पर 30 में खत्म हो रहा है, इस शुरू हो रहा है, देयर इज ए गैप। नेक्स्ट थर्ड केस में यहाँ पर 39 में खत्म हो रहा है, नेक्स्ट में 40 में शुरू हो रहा है, तो देयर इज ए गैप। तो गैप कितने का आता है, फर्स्ट केस में गैप कितना है 1, सेकेंड में गैप कितना है 1, थर्ड में गैप कितना है 39 40 1, फोर्थ में 49 में खत्म हुआ, 50 से शुरू हुआ, गैप कितना है 1। तो हमको पता है जब इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज होता है, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट टू एक्सक्लूसिव सीरीज बाय अप्लाइंग गैप बाय 2 फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, गैप बाय 2, दैट इज इक्वल टू गैप कितना है 1/2, इसका मतलब कितना 0.5। इसका मतलब यहां पर इस साइड से 0.5 माइनस करेंगे, यहां पर माइनस करेंगे 0.5 और यहां पर प्लस करेंगे 0.5, यहां पर माइनस करेंगे 0.5, यहां पर प्लस करेंगे 0.5, यहां पर माइनस करेंगे 0.5, यहां पर प्लस करेंगे 0.5, यहां पर माइनस करेंगे 0.5, यहां पर प्लस करेंगे 0.5, यहां पर माइनस करेंगे 0.5, यहां पर प्लस करेंगे 0.5। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव सीरीज हो जाएगा। तो अगर इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है, पहले उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाकर हम क्या कर सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। तो अभी देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, रिवाइज्ड क्वेश्चन। कौन से फॉर्मेट में, एक्सक्लूसिव फॉर्म में। क्या हुआ, क्वेश्चन रिवीजन हो गया। पहले मार्क्स, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स में क्या क्या है, पहले 10 से 0.5 माइनस करो तो 9.5, से 19 में 0.5 ऐड करो 19.5। बात समझ में आ रहा है क्या। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2। नेक्स्ट 20 में 0.5 माइनस करो, दैट इज इक्वल टू 19.5। अच्छा 29 में 0.5 प्लस करो 29.5, इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू है 15 एफ। नेक्स्ट 30 में 0.5 माइनस करो 29.5, और इसमें 39 में 0.5 प्लस करो 39.5, इसका वैल्यू कितना आता है 10। फिर 40 में 0.5 माइनस करो 39.5, और 49 में 0.5 प्लस करो 49.5, कितना आता है 13। फिर 50 में 0.5 माइनस करो 49.5, फिर 59 में 0.5 प्लस करो 59.5, ठीक है। और ये है 6। लेकिन मैं बताया था जब हम रेंज निकालते हैं हमको फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ता है, हमको ये वैल्यू की जरूरत नहीं है,
हम सिर्फ ये वैल्यू मार्क्स देखकर क्या करेंगे, बताएंगे, रेंज निकालेंगे। तो अभी देखो ये जो इस केस में व्हाट इज द लोएस्ट आइटम, व्हाट इज द हाईएस्ट आइटम, तो व्हाट इज एल, व्हाट इज एस, तो देखेंगे इस केस में। हाँ, तो इस केस में व्हाट इज एल, व्हाट इज एस, व्हाट इज एल, पहले एल निकालते हैं। एल इज इक्वल टू व्हिच आइटम, लार्जेस्ट आइटम। देखिए सबसे बड़ा बड़ा वाला आइटम कौन सा है, 59.5। देन व्हाट इज एस, एस इज द स्मॉलेस्ट आइटम। देखिए सबसे छोटा आइटम कौन सा है, सबसे छोटा आइटम 9.5। तो अभी रेंज इजीली निकल सकता है। रेंज इज इक्वल टू, फॉर्मूला डालेंगे एल माइनस एस। व्हाट इज एल, 59.5 माइनस व्हाट इज एस, 9.5। कितना आ रहा है, 59.5 से 9.5 गिराने से आ गया आपका 50। तो आपका रेंज आ गया 50, रेंज आ गया 50, रेंज इज इक्वल टू 50। ओके, सो रेंज इज इक्वल टू 50। एक बार रेंज मिल गया, फिर हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे। तो देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, दैट इज इक्वल टू एल माइनस एस डिवाइड बाई एल प्लस एस। एल माइनस एस कितना है, एल है लार्जेस्ट आइटम, दैट इज इक्वल टू 59.5 माइनस 9.5 डिवाइड बाई 59.5 प्लस 9.5, दैट इज इक्वल टू ऊपर में आ गया 50 डिवाइड बाई, नीचे में आ गया 50 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 69, दैट इज इक्वल टू 0.72। आंसर आ गया। तो यहां पर हमारा रेंज कितना आया, रेंज आ गया आपका आंसर, रेंज का 50 किस में आएगा, मार्क्स में। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना आया, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 0.72। So this is regarding range and coefficient of range. ये रेंज है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। Am I clear? तो रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ओवर। रेंज क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, हम सारा केस में पढ़ लिए। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस में एक्सक्लूसिव भी देखे, नेक्स्ट क्या देखे, एक्सक्लूसिव भी देखे, और इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे रेंज निकलेगा उसके बारे में बात की। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रेंज। तो लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेंज। रेंज कहां कहां पर अप्लाई होता है, एप्लीकेशन ऑफ रेंज, फिर पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ रेंज, फिर पढ़ेंगे डिमेरिट्स ऑफ रेंज। हेडिंग कीजिए एप्लीकेशन ऑफ रेंज, एप्लीकेशन ऑफ रेंज। Now range as a dispersion has wide application. ये बहुत जगह पर रेंज का यूज होता है। रेंज has a wide application. It is used in common man's life. कैसे, कहां कहां पर आप रेंज देखेंगे, इट हैज वाइड एप्लीकेशन। कहां कहां पर अप्लाई होता है, मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं। ये एग्जाम्पल एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा बहुत जगह पर भी अप्लीकेबल होता है। फर्स्ट, when you see fluctuation in share price, आप अगर टीवी खोलेंगे,
टीवी में देखेंगे आज इन्फोसिस का शेयर मिनिमम इतना था, मैक्सिमम इतना था, तो इसका प्राइस इसके बीच में फ्लक्चुएशन किया है, फ्लक्चुएशन इन शेयर प्राइस या और कमोडिटी प्राइस। कोई कमोडिटी का दाम, सोने का दाम आज के डेट में इतना था, हम आप ऐसे बोलते हैं जैसे टीसीएस का दाम कितना था आज के डेट में, आप देखिए टीसीएस का दाम 550 से लेकर 580 के बीच में था, इसका मिनिमम रेट 550 था और दिन में मैक्सिमम रेट 580 था। गोल्ड का दाम 45,000 से लेकर 45,250 था, इसका मतलब क्या है, मिनिमम 45,000 रेट था, मैक्सिमम 45,250। गोल्ड का दाम आज के डेट में ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रहा है। टीसीएस का शेयर का दाम 550 से लेकर 580 के बीच में कुछ ना कुछ रहा है, क्योंकि टीसीएस का शेयर का प्राइस बदलता रहता है, गोल्ड का प्राइस दिन में हर वक्त बदलता रहता है, लेकिन मैक्सिमम इतना हुआ है, मिनिमम इतना। तो शेयर प्राइस का फ्लक्चुएशन को स्टडी करने के लिए हम किस डिस्पर्सन का यूज करते हैं, ये रेंज का यूज करते हैं। सेकेंड, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। आप टीवी देखेंगे, मौसम का हालत देखेंगे, आज का तापमान मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना दिखाता है। आज का टेम्परेचर रहा है 23 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक, तो मिनिमम 23, मैक्सिमम 25। सो दिस इज नोन एज रेंज, दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम को हम बोलते हैं ही, दिस इज स्मॉलेस्ट आइटम, दिस इज लार्जेस्ट आइटम, और आज का तापमान इन दोनों के बीच में रहा है। तो इन ऑर्डर टू स्टडी फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर वी ऑल्सो स्टडी द डिस्पर्सन। नेक्स्ट, फ्लक्चुएशन इन रेनफॉल। कोई किसान को ये रेनफॉल का फ्लक्चुएशन की पता होना चाहिए, उसको पता है हमारा आज इस महीने में 105 मिलीमीटर से लेकर 150 मिलीमीटर तक क्या हुआ है, बारिश हुआ है। तो मिनिमम 105 एंड मैक्सिमम 150, तो ये हो गया रेंज, फ्लक्चुएशन इन रेनफॉल। देन फ्लक्चुएशन इन मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट। फ्लक्चुएशन इन मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट एग्जाम दिया है, उसका कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क आया है, मिनिमम मार्क आपका आया है 50 और मैक्सिमम मार्क आया है, बहुत सारा सब्जेक्ट एग्जाम दिया है लेकिन मिनिमम 50 आया, मैक्सिमम 90 आया। सो दिस इज अ रेंज। So range is a statistics to study fluctuation. It's a statistics to study variation of individual item to the central value. So इस तरह का केस में रेंज की एप्लीकेशन होता है। रेंज इज अप्लाइड इन दिस टाइप ऑफ केसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ रेंज। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ रेंज। तो देखेंगे, फर्स्ट लिखिए मेरिट्स ऑफ रेंज, हेडिंग कीजिए मेरिट्स ऑफ रेंज। रेंज का क्या फायदा है, फिर हम बात करेंगे रेंज का क्या नुकसान है। तो पहले लिखेंगे मेरिट्स ऑफ रेंज। फर्स्ट, it is simple to calculate and easy to understand. So first, it is simple to calculate. Second, it is easy to understand. ये सिंपल है, इजी है। तो जो चीज सिंपल और इजी होता है उसका वाइडर एप्लीकेशन होता है इन कॉमन मैन्स लाइफ। तो लिखेंगे इट हैज वाइडर एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन। इट हैज वाइडर एप्लीकेशन
in day-to-day life of a common man. एक कॉमन मैन के लाइफ में इसका बहुत एप्लीकेशन है, ठीक है। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ रेंज। नेक्स्ट क्या क्या मेरिट्स आया? सिंपल टू कैलकुलेट, नेक्स्ट इजी टू अंडरस्टैंड, और इट हैज वाइडर एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन। दीज आर द मेरिट्स ऑफ रेंज। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ रेंज। डिमेरिट्स क्या क्या है, डिफेक्ट क्या है? डिमेरिट्स ऑफ रेंज, रेंज का सबसे बड़ा डिफेक्ट है ये सिर्फ दो वैल्यू को कंसीडर करता है। कौन कौन सा दो वैल्यू? एक है लार्जेस्ट वैल्यू, एक है स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। सो रेंज इज बेस्ड अपॉन ओनली टू एक्सट्रीम वैल्यू। इट डज नॉट कंसीडर other values in a series, तो it is not based upon all items of a series। तो लिखेंगे range considers, first point demerits, range considers only two extreme value। Hence it is not based on, hence it is not based upon all items of the series। एक सीरीज का सारा आइटम के ऊपर बेस नहीं है, ये किसके ऊपर? सिर्फ टू एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू किसको बोलते हैं? लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये सिर्फ लेता है किसको? लार्जेस्ट वैल्यू को लेता है, और किसको लेता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेता है। एल और एस के बेसिस पर ये डिस्पर्सन निकाला जाता है। सो दिस इज द डिमेरिट्स ऑफ रेंज। सेकेंड डिमेरिट, सेकेंड डिमेरिट लिखिए, it cannot be calculated, it cannot be computed in case of open ended series। what is open ended series? open ended series में क्या है? इसका वो फास्ट वाला पता नहीं कि लास्ट वाला पता नहीं। जैसे ओपन एंडेड सीरीज ऐसा होता है, बिलो 10, फिर आया 10 to 20, फिर आया 20 to 30, फिर आया 30 to 40, फिर आया 40 एंड एबव। तो बोलिए इसका लार्जेस्ट आइटम कौन सा है? एल पता नहीं, एस पता नहीं। इस केस में वी कैन नॉट अप्लाई रेंज। तो हियर रेंज कैन नॉट बी अप्लाइड, रेंज अप्लाई नहीं हो सकता है। ये ओपन एंडेड सीरीज है, ओपन एंडेड सीरीज में रेंज इजीली अप्लाइड नहीं हो सकता है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ रेंज। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट कंसिडर फ्रीक्वेंसी, इट इज ओनली बेस्ड अपॉन व्हाट इज वेरिएबल्स। तो थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट कंसिडर फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ, इन केस ऑफ डिस्क्रीट ऑब्लिक कॉन्टिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज हो या कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, ये किसको कंसिडर नहीं करता है? फ्रीक्वेंसी को कंसिडर नहीं करता है, ये सिर्फ वेरिएबल्स को कंसिडर करता है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ रेंज। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रेंज। तो आज के क्लास में क्या पढ़ाया उसका समरी बनाएंगे, क्लास खत्म करेंगे। तो लिखेंगे समरी। तो आज के क्लास में हम बात किए किसके ऊपर? आज के क्लास में हम बात किए रेंज के ऊपर। सो व्हाट इज रेंज? तो मैं बताया रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट आइटम एंड स्मॉलेस्ट आइटम। तो आज हम पढ़े रेंज। रेंज में क्या है? इट्स द डिफरेंस बिटवीन
largest item and smallest item. Next, second पढ़े, what is the formula of range? Formula range is equal to, formula पढ़े L minus S. Next पढ़े range, this is which range? This is absolute value of range. रेंज का एक रिलेटिव वैल्यू है जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकला? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हम निकालते हैं L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस. ये फॉर्मूला इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस तीनों सीरीज में यही फॉर्मूला है. इंडिविजुअल में यही फॉर्मूला है, डिस्क्रीट में यही है और कॉन्टिन्यूअस में वही है. नेक्स्ट पॉइंट पढ़े, अगर इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव वन, देन कैलकुलेट रेंज. इफ inclusive series is given, first convert it into exclusive one, then compute range. नेक्स्ट पढ़े, रेंज का वाइडर एप्लीकेशन है. रेंज इज अप्लाइड इन डे टू डे लाइफ. रेंज इज अप्लाइड इन डे टू डे अफेयर्स. लेकिन रेंज का सबसे बड़ा डिमेरिट्स क्या है? इसका डिमेरिट्स है इट इज बेस्ड अपॉन ओनली टू वैल्यूज, लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, बट it is based upon two extreme values. That is L and S. So this is the summary of today's class. Before concluding my class, let me first tell, if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe to my channel. My channel is Commerce Forum. YouTube channel is Commerce Forum. Once you subscribe it, kindly press the bell icon so that you will get my latest videos as and when I upload it in YouTube. And once you press bell icon and if you like my videos, kindly press the like button. Still, if you have any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is biswamisra@gmail.com. Thank you. Thank you all for watching my videos. Thank you. Thank you. Thank you. Have a good day. Have a nice day.